Okay, so hello everyone, how are you? Once again, I welcome you onto the channel Crack 9th and 10th CBSE. जी हाँ बच्चों, अन अकेडमी के चैनल क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई पर एक बार फिर से आप सभी का है स्वागत। ओके, एंड बच्चों क्या क्या व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर ऑन दिस चैनल। यस बच्चों, हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट्स की सारी प्रॉब्लम्स। यस, योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th। Okay, and as I am Aman Gupta, as you all know, your own math educator. जी हाँ, मैं आपका अपना मैथ टीचर अमन गुप्ता, and as you all know, I am M.Tech graduate, and from last 5 years, regularly mentoring IIT JEE or NTSE students. And now, as for you, you can ask me your any problem of your class 9th, 10th and NTSE। जी हाँ, आप अपनी क्लास 9th, 10th और NTSE की कोई भी प्रॉब्लम बच्चों मुझसे शेयर कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो। ओके, एंड व्हाट इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे? बच्चों आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? टुडे वी आर गोइंग टू कन्वे अबाउट व्हाट? स्टैटिस्टिक्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। यस, आज हम स्टैटिस्टिक्स के सारे बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक न्यूमेरिकल्स और ऑल द टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो होप सो ऑल ऑफ यू आर रेडी टू लर्न समथिंग न्यू अबाउट स्टैटिस्टिक्स। ओके, because it's a very heavy weightage topic in your class 9th, 10th as well as class 11th. Okay guys, चलिए, so let's move on. Before starting the class, quickly tell you about Unacademy. Okay, so guys, as you all know, Unacademy is the largest learning platform in the India right now. Okay, and when you take any subscription with Unacademy, okay, then what are the features you will get? Yes, you will get your daily live classes. सबसे पहली चीज बच्चों जो आपको प्रोवाइड होगी, that is your daily live classes along your class stream with all the subjects. Means if you are in class 10th, then you will have Hindi, English, Maths, Science, SST and everything. Which subject you will have, all classes you will get daily live. Okay, next thing is what? Live test and quizzes. अब guys, टेस्ट और क्विजेस का एडवांटेज क्या है हमारे सामने? What are the advantages we have? Because in the student life we generally read up the things. काफी सारी चीजें बच्चों हम रीड करते हैं, am I right or not? A lot of things we read it up in our student life. Okay, but what happens when we give the test? Then actually you know how much things you understand, okay, and where you are lagging right now. बच्चों जब आप टेस्ट देते हो, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम यू विल नो एग्जैक्टली वेयर यू आर लैगिंग एंड वेयर यू आर लर्निंग, so that in every chapter and every concept we have some quizzes and tests to regularly check out your knowledge and grasp on that particular topic. Okay, next point is structured course. आपका जो course है, syllabus है, is arranged and planned in a very structured manner. Okay, and next one is unlimited access. Yes, when you take any subscription with Unacademy, okay, then you get unlimited access of your course. आपको मिलती है आपके कोर्स की पूरी एक्सेस. Yes, what is the meaning of unlimited access guys? I will little brief you about it. Okay, what is the meaning of it? Yes, that means if some students miss 2-3 day classes due to any such reasons, okay, so they have not to worry. उससे परेशान नहीं होना बेटा. You have all the recorded sessions, PDF files of the notes which teacher taught to you, and yes, direct one-to-one educator support. Yes, like I am teaching a topic statistics today. Some student miss that class and they join from tomorrow. Okay, so they can take the PDF notes and my class recorded version and also clarify doubts from me. Okay, that is the meaning of unlimited access, because we don't want to interrupt any study in any case. Okay बच्चा पार्टी? Okay, चलिए, prepare with top educators. Yes,
A lot of things, yes, not only me but lot of educators are available to teach you, to guide you, to mentor you across all parts of India. Yes, और बच्चों सारे के सारे educators, all the educators are expert in their respective subjects and all are available every time to teach you and guide you. Okay, चलो जी, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे विद इन अ वेरी फैंटास्टिक वे. Now you can also follow us on Telegram channel. Yes, आपने करना क्या है बच्चों, होप सो यू ऑल हैव टेलीग्राम ऐप. नहीं है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो फटाफट से एंड URL में जाके आपको टाइप करना है व्हाट http:/t.me. URL में जाके बच्चों आपने ये टाइप कर देना है. Then what you will get updates and notifications of each and every class which is going to be conducted on the Unacademy platform, either YouTube, either special class. Okay guys, chaliye now most important things, how and which manner you start your proper study with Unacademy. Okay guys, so either you are from 9th, 10th, 11th and 12th, subscription pricing was the same for everyone. Okay, so you can go for 12 months, 24, 36 and 40 months as per the suitability. Yeah, but I will convey that go for at least 12-month plan. Yes, 1 year, because बच्चों फॉर्मुलेटिव कंसेप्ट, बिल्कुल डीप कंसेप्ट बनाने के लिए अप्रॉक्स यू रिक्वायर्ड 12 months timings. 12-month timing should be required at least. Okay, and when you go for this subscription, apply my code SPAG10. yes बच्चों, आपने अप्लाई करना है SPAG10, SPAG10. ओके, SPAG10 करना है बच्चों आपको अप्लाई. व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 10% ऑफ डायरेक्टली. Okay, instantly. If you have any query, any doubts regarding subscription, yes, feel free to ask our support team. Yes, Unacademy team also required to clear your all doubts. Okay, कोई भी query बच्चों आपको है, you can talk to our executives, they will clarify your doubts surely. Okay, move on. Finally, coming on to our topic. Yes, as I say you previously also, we are going to study math as I am your own math educators. Okay, sit back, I say everyone beta, take cool, keep cool and calm because it's our first class on this chapter. Yeah, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है हमारी इस चैप्टर की, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है आप लोगों ने. बिल्कुल बेसिक से सारी बातें ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे सो दैट एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड मी. ओके, हर एक बच्चे को सारी बात समझ में आती रहे. ओके, चलिए अब सबसे पहला पॉइंट जो बच्चों हमारे माइंड में आना चाहिए है ना, एज आई से यू एवरी टाइम व्हेन आई टीच यू एनी न्यू टॉपिक, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. What is statistics? I'll give you 20 seconds to analyze in your mind. Yes, everybody have to be analyzed in your mind that what do you understand by the term statistics. आप statistics term से बच्चों क्या समझते हो? Just explain me little bit. थोड़ा सा मेरे को एक आइडिया दो कि सर statistics से मेरी समझ में तो ये आता है. Okay, yeah, go for it. Go for it. What you understand by statistics? Yeah, चलिए. अरे ये क्या आ गया भाई, कार, CAR. आप सोच रहे होगे सर ये क्या भाई, हम तो मैथ्स पढ़ रहे हैं और आप बात कर रहे हो कार की. तो बच्चों आई एम राइट. यस, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू द एग्जैक्ट एंड इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स. यस, अब से जब भी आपके पूछा जाएगा स्टैटिस्टिक्स के बारे में, आपका जवाब एक ही होना चाहिए, कार. व्हाट, CAR. C फॉर कलेक्शन, C stands for what, collection. A for analysis, A for analysis, and R for representation. ओके, बस बेटा बिल्कुल आपने याद रखना है कार को. ओनली यू हैव टू रिमाइंड द कार, CAR. ओके, यस,
व्हेन समबडी आस्क्स टू यू व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, आपका जवाब सीधा सा होगा सर इट इज कार. He asks you again what is car, then you replied him sir it is a collection, analysis and representation of data. Yes, और डिटेल में बात करनी है तो यू कैन से दैट स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ठीक है, मतलब स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम किसी भी गिवन डेटा का पहले कलेक्शन करेंगे, देन उसको एनालिसिस करेंगे, देन उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, yes, so last time statistics is basically to collect, analysis and representation of given data. क्लियर है? होप सो अब आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो स्टैटिस्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन. Am I right? Move on. Yes, so before starting this chapter I have to introduce you about types of statistics. Yes बच्चों, टाइप्स क्या क्या है स्टैटिस्टिक्स के वो समझ लेते हैं हम एक बार फटाफट से. सबसे पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की. तो बच्चों अभी हम अपने 9th और 10th में बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की एंड सेकंड वन इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, और उसमें भी अगर मैं आपसे 9th की बात करूं तो 9th में बच्चों हम बात करेंगे मेनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की. एंड व्हेन वी कम ऑन द 10th सिलेबस देन वी आल्सो टॉक अबाउट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी. ओके, एंड सेंट्रल टेंडेंसी में हम बात करेंगे आपसे फर्स्ट टर्म मीन, मोड एंड देन मीडियन. Mean, median and mode are the three variables to measure central tendency and measure of variability. डेटा किस रेट से या किस स्पीड से वेरी कर रहा है ये हम डिसाइड करते हैं बच्चों रेंज, वेरिएंस एंड डिस्पर्जन से. ओके, तो बेसिकली व्हाट यू अंडरस्टैंड, आपने क्या समझा कि हम स्टैटिस्टिक्स में सर बात करने वाले हैं मीन, मीडियन एंड मोड की इन द क्लास 9th. And when we move further to the class 10th or NTSC level, then we also added up range, variance and dispersions. Okay, यानी कि सिंपल सी बात जो आपको अभी समझनी थी कि हमको भैया इन 6 पॉइंट्स के आसपास ही घूमना है, मीन, मोड, मीडियन और ये अंकल जी हमारे रेंज, वेरिएंस एंड डिस्पर्जन. ठीक है जी, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा बिल्कुल क्विक इंट्रो अपनी प्रीवियस क्लासेज में पढ़ के आ चुके हो, बट अभी हम बात करेंगे बच्चों थोड़ा सा डिटेल्ड वे में. ओके, चलिए नाउ अब जैसा कि मैंने आपसे भी बोला था कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन विच आई आस्क टू यू एंड यू आस्क टू योरसेल्फ, व्हाट इज डेटा. याद रखना बच्चों आज की क्लास में मैं मैक्सिमम आपसे डिलीवर करूंगा व्हाट इज, और कल हम बात करेंगे व्हाई एंड हाउ की. यस, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे व्हाई एंड हाउ. आज हम ये समझेंगे व्हाट इज दिस, और कल हम बात करेंगे व्हाई एंड हाउ. ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल अप्रोच की बात आपसे करने जा रहे होंगे. एम आई राइट? चलिए, वेरी गुड. तो टाइप्स ऑफ डेटा जैसा कि आपके सामने है, उससे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज डेटा. सो एज यू सी द वर्ड डेटा मीन्स एनी इंफॉर्मेशन. यस, बिल्कुल राइटली सेड, एनी इंफॉर्मेशन. बच्चों कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है दैट इज कॉल्ड अ डेटा. लाइक यू से सर इन द लास्ट वीक MS Dhoni take the retirement. Yes, that's a news. You can say sir in last 1 month government applies some new policy in education. Yes, that's a data. Okay, it may be either numerical form or any other form. Okay, data may be numerical form or any other form. Okay, but in mathematics generally we talk about numerical data, but in general it may be on any form. It may be subjective, descriptive, numericative, indicative also. Okay guys, चलिए अब सेकेंड पॉइंट जो हमारे दिमाग में है टाइप्स ऑफ डेटा. एंड एज आई सी इन द लोअर्स ऑफ स्लाइड, व्हाट, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. ओके, 2 ऑप्शंस. ओके, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस क्या है बच्चों ये समझो. देखो गाइस, 2 चीजें होती हैं, एक होता है ऑब्जर्वर. ओके,
अब प्राइमरी डेटा क्या होगा बच्चों? द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय फर्स्ट बाय द ऑब्जर्वर। सपोज करो मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, बिफोर लिविंग दैट आई विल से यू आस्क यू अ क्वेश्चन दैट हाउ मच फैमिली मेंबर्स डू यू हैव इन योर फैमिली? आपके फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हैं? सपोज इफ आई टॉक टू अबाउट माई सेल्फ, आई हैव वन ब्रदर एंड टू सिस्टर एंड माई पेरेंट्स, so that I say I have 6 family members. Yes or no? So tell me, who is the first observer to collect this data? Me. Then it is called primary data for me. When the observer collect the data itself, या फिर आप ऐसे मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है, मैंने पूरा मैच देखा एंड आई विल सी दैट MS धोनी स्कोर्ड 112 रन्स। मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि भाई कल के मैच में MS धोनी ने 112 रन बनाए थे, तो मेरे लिए फॉर मी इट विल बी व्हाट? प्राइमरी डेटा। ओके, एंड व्हेन आई कन्वे टू माय फ्रेंड which is not seeing that match, okay, so that is the second data for him. Like same ways as I talk to you how much family members you have, तो आपको अपनी फैमिली के मेंबर्स पता हैं, but suppose that if I ask to you total number of students in your school, इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करूं, अगर मैं आपसे पूछूं total number of students in your class, then you can tell me sir 44 or 42 and data which you have, so that is primary data for you. बट अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आपके स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो क्या बता पाओगे? नहीं, बट आप क्या बोलोगे? यस सर प्लीज वेट, आई विल गो टू द रिसेप्शन डेस्क एंड टॉक टू द मैम अबाउट द ऑल डेटा। You go to the reception, talk to ma'am, total number of students in our school will be, they will tell you beta 3500. So you collect the data from any other, ये डेटा आपने कहां से कलेक्ट किया? टू एनी अदर, देन दैट काउंटिंग 3500 will be what? Secondary data for you, because you are not the collect the data very first time. Okay, hope so very clear to all of you what is the difference between primary data and secondary data. Again I repeat you, primary data will be that when the observer collects the data itself, जब ऑब्जर्वर बच्चों खुद डायरेक्टली खुद डेटा को कलेक्ट कर रहा है, then that will be primary data, and second data will be collected by any other. अगर आप उस डेटा को किसी और से रिसीव कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, then it is called secondary data. ओके, चलिए बेसिक टर्म्स की हम बात करेंगे बच्चों। Now before starting the chapter बच्चों, a lot of basic terms are here which we have to keep in our mind, okay, so that very comfortable to solving the numerical part, जिससे कि न्यूमेरिकल पार्ट्स में बच्चों कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हमको ना आए। ओके, सो फर्स्ट टर्म इज रॉ डेटा। सबसे पहला पॉइंट जिसकी मैं आपसे बात करूंगा बेटा, दैट इज रॉ डेटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म। व्हेन यू कलेक्ट एनी डेटा, है ना, जो डेटा बेटा आपको ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा। आप कहते हैं ना रॉ मटेरियल, कच्चा माल, मतलब उसमें भी हमने कोई भी फिनिशिंग, कोई भी डिजाइनिंग कुछ भी नहीं किया है, जैसा मिला वैसा उठा लाए। यस और नो? दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल फॉर्म। सही है बात? पक्का? तो रॉ डेटा इज व्हाट? द डेटा विच वी कलेक्टेड इन द ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनली हमें जिस फॉर्मेट में मिला हमने वैसे ही रिसीव किया, दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा। सेकेंड पॉइंट, ग्रुप्ड डेटा। नाम से ही क्लियर है, द डेटा विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल बात करूं बच्चों, आप स्कूल में होते हो, क्या होता है आपके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, यस और नो, है ना, लाइक सेक्शन वाइज, क्लास 7th, क्लास 8th और क्लास 9th, और उसमें भी ग्रुपिंग होती है बच्चों आप लोगों की, उसमें भी ग्रुपिंग होती है, सेक्शन 7A, 7B, 7C, 9th A, 9th B, 9C, तो दैट इज व्हाट? ग्रुपिंग। Okay, so when I have to collect the data of class 9th, and suppose we have 4 section, 9A, okay, and 9B, 9C and 9D,
तो टेल मी, if I know to about the students of class 9th totally, then I have to combine all the groups 9A, 9B, 9C and 9D. ठीक है, मीन्स यहां पर डेटा आपको किस फॉर्मेट में मिल रहा है बच्चों? ग्रुप्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हो रहा है। ओके, तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट एंड थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट विच इज अरे। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों अरे की। व्हाट इज अरे? यस, यू कैन रीड इट वेरी केयरफुली। अरेंजमेंट ऑफ रो न्यूमेरिकल डेटा। यस, कोई भी रॉ डेटा तुमने बात की ओरिजिनल फॉर्मेट में, कोई भी न्यूमेरिकल डेटा है बच्चों जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, दैट इज कॉल्ड एन एरे। लाइक हम सिंपल सी बात करें बच्चों, इफ आई टेक अ टेस्ट ऑफ यू ऑफ 10 मार्क्स, then somebody of you get 2, 9, 7, 5 and 4, suppose like that. Okay, that is a score of 5 students in my class. Okay, and what should I share to you? Arrange this data in the array form. What you write? You can write, sir, 2, 4, 5, 7 and 9. Am I right? So then it will called an array. Means आपने क्या किया? डेटा को ascending order में अरेंज कर दिया. As you see, when your results are distributed, बच्चों जब आपके फाइनल एग्जाम्स, ईयरली एग्जाम्स के बाद आपको रिजल्ट्स मिलता है, देन यू सी योर रैंक इन योर एग्जाम शीट. यस, आपके स्कोर बोर्ड में एक रैंक लिखी होती है. क्या होता है? दैट इज स्टार्ट बाय टॉप, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं वो टॉप पर, देन लेसर, देन लेसर, देन लेसर एंड देन बॉटम मोस्ट. एम आई राइट? Yes or no? So that is called an array, which is an systematic arrangement of numerical data in the ascending or descending order. Clear to you? चलिए move on to the another some important definitions. Then we go to our point, means, median and mode. Okay, yeah, because it's our first and introductory class, so I have explained you each and everything in very much detailed way. Okay, first point, class interval. सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे क्लास इंटरवल की. ओके, चलिए, what you convey about it? Class interval, each group in which raw data is condensed is called a class interval. It is like a group data. Okay, second and important one, range. बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों, डायरेक्टली आपको कराऊंगा मैं आज काफी सारे क्वेश्चंस रेंज के ऊपर. ओके, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट विल बी कॉल्ड एज रेंज. ठीक है बच्चों, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? रेंज, उस गिवन डेटा की. लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर भी हम करेंगे काफी सारे न्यूमेरिकल्स. यस, क्लास मार्क इज डिफाइंड एज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. अभी मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, सो दैट वेरी क्लियर टू यू व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज क्लास मार्क. ओके, सो यू हैव टू क्लियर टू थिंग्स. व्हाट इज रेंज, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. व्हाट इज क्लास मार्क, it is calculated as upper limit plus lower limit divided by 2. okay, चलिए चलिए चलिए, तो समझ लेते हैं भाई रेंज और क्लास मार्क दोनों को. आपको दिया है बच्चों एक क्लास में स्टूडेंट की एजेस, 13 एजेस है 2 स्टूडेंट्स की, 14 एज है 3 स्टूडेंट की एंड 15 एजेस है 4 स्टूडेंट्स की एंड 16 अगेन एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स. यस, okay, and the range will be what? Highest minus lowest. Yes, बच्चों हम बात करेंगे रेंज की, then what will we get the range? Yes, highest minus lowest. Yes, and highest will be what? 16, lowest will be what? 13. So our range will be what? Our range will be what? 3. ठीक है, अब यहीं पर बच्चों मैं आपसे बात करूं क्लास मार्क की, तो मैंने आपसे भी क्या बोला, देखो ध्यान से, क्लास मार्क विल बी व्हाट? अपर लिमिट. यस, क्लास मार्क आई विल राइट इट CM in short, is equals to upper limit
plus lower limit divided by 2, and you see what is upper limit, which is 16, what is lower limit, that is 13 divided by 2. Okay, 16 plus 13 divided by 2 will be 29 by 2, that is 14.5. Clear? That is your class mark for given data. Clear everyone? I think very clear to all of you about range and class mark. Nobody have any confusion as such, I think. Okay, chaliye. Now we coming on what? Graphical representation of statistical data. Yes. क्या क्या तरीके हैं बच्चों हमारे पास डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के? यस, बिकॉज इन अवर क्लास 9th we have to deal with the graphical representation of data. As you all know, we have a lot of methods: bar graph, histogram, and what? Frequency polygon. Okay, so let's understand each and everything with all the conceptual details. Go for it. First one is what? बार ग्राफ. सबसे पहला टाइटल क्या है बच्चों हमारा? बार ग्राफ. और ऐसा आपने देखा है कई बार. यस, बिल्कुल. यहां पर क्या होता है बेटा, आपकी इंफॉर्मेशंस जो हैं बार्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती हैं. डेटा क्या है बच्चों? ये एक चार्ट है आपका विच कंपेयर्स द लैंग्वेज स्पीकर्स, है ना. किसी भी कंट्री में लैंग्वेज स्पीकर्स का रेशियो बता रहा है. सबसे पहले बच्चों आपका स्पेनिश का, और आप देख रहे हो स्पेनिश कहां तक जा रहा है बेटा? अप्रॉक्स 50 बार से थोड़ा सा नीचे, अप्रॉक्स 45. तो इंफॉर्मेशन आर शेयर्ड इन द ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ अ बार्स. यू विल सी डिफरेंट बार्स ऑफ ईच लैंग्वेज, दैट इज फॉर स्पेनिश, चाइनीज, हिंदी एंड फ्रेंच एंड इंग्लिश. अब क्विकली ऑब्जर्वेशन बेसिस पर बात करूंगा. कैन यू टेल मी लोएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर इज ऑफ विच लैंग्वेज? टेल मी. किस लैंग्वेज के स्पीकर सबसे कम हैं? जल्दी से बताओ. सो क्वाइट ऑब्वियस, as you analyze the graph you will say me very clearly, sir, it is of Spanish. I'll say you right. Obviously you are right. Secondly, if I ask to you, highest number of speakers are of which language? सबसे ज्यादा बोलने वाले कौन हैं? Then what you say? Sir, English. Quite obvious. You can observe directly from the graph, and you can also tell me the figure also. As such, I see it is approx 110 in crores, near about 110 crores. Okay, clear to you? Chaliye. So that is the bar graph in which we represent the data in the rectangular form. Okay. सेकंड वन हिस्टोग्राम. और ये हमने देखा है कई बार बच्चों. याद करो कहां पर? टेल मी 20 सेकंड्स दिए आपको मैंने. मुझे बताओ कहां पर देखा है आपने ऐसे फिगर्स मेनी टाइम्स? सबसे ज्यादा फिगर्स हमने कहां देखे हैं? जल्दी से बताओ. स्टडी में भी देखे हैं और रियल लाइफ में भी देखे हैं आप सब ने. मैंने भी देखे हैं भाई जी. तो सबसे पहले रियल लाइफ में बच्चों हमने ये फिगर्स देखे थे कहां पर? टेलीविजन पे. और टेलीविजन में कहां पर बच्चों? क्रिकेट मैच में. am I right? When we saw cricket match, what we see? India scoreboard in first 10 overs, then next 20 overs, then next 30 overs, then 40 and then 50. वनडे मैचेस हम देखते हैं स्कोरबोर्ड लाइक दिस फॉर्मेट. ओके. एंड इसके अलावा बच्चों आपने अपनी सोशल साइंस की बुक्स में भी यस काफी बार देखा होगा पॉपुलेशन को सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, कंट्री वाइज. पॉपुलेशंस को भी जनरली इसी टाइप से डिनोट किया जाता है. यस और नो. जहां पर क्या होता है बेटा? एक्स एक्सिस पर कोई एक पैरामीटर कंसीडर किया जाता है एंड वाई एक्सिस पर कोई दूसरा पैरामीटर कंसीडर किया जाता है. एंड वी रिप्रेजेंट द डेटा इन दिस फॉर्मेट. ओके. सो आई थिंक यू आर क्वाइट हैबिचुअल विद दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस.
Am I right? Sure, I'm right. Okay, move on with frequency polygon. Yes, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। तो बता दो मुझे जल्दी से बेटा, ये वाला ग्राफ आपने कहां कहां देखा है? यस, टेल मी, ये वाला ग्राफ आपने कहां देखा है, जल्दी से बताओ। यस, ये वाला ग्राफ भी बच्चों आपने, फिर से मैं बोलूंगा, दोनों ही बार देखा है, टीवी में भी देखा है। When you see in the hospital scene any movie or any serial, that type of graph will moving on by the heartbeat. Am I right? Heartbeat upping and down. And also you see that in the cricket match also again. Yeah, as you know, I'm a big fan of cricket, so I will take my maximum examples related with cricket. What you see when we are doing comparative analysis of scoreboard of two teams generally, then what they convey to us, like in the first 5 overs India will be above to the Pakistan, and then its run rate will be down, and then it will be growing up, then it will be growing down, like that. Okay, and you know that what this represent at that time? Tell me. जब हम बेटा क्रिकेट में देख रहे होते हैं ऐसा चार्ट, तो इनका मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ मुझे। टेल मी वेरी क्विकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सर्किल्स इन द क्रिकेट मैच? जल्दी से बोलो, आपको पता है ये क्या होता है बच्चों? FOW मीन्स फॉल ऑफ विकेट्स। कौन से ओवर में कौन से नंबर का विकेट डाउन हुआ था। ओके, सो व्हाट यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड बेसिकली three terminology to represent the graphically data. First is what? Bar graph. Secondly, you learn about histogram. Bar graph, histogram. And last you learn about what? Frequency polygon. Frequency polygon. Bar graph, histogram and frequency polygon. Clear है? चले? Now coming on to our important topic, as we discuss with you all the important definition, basic terminology also, and now we are going to deal with what? Central tendency. Yes, बच्चों हम आपसे बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी की। यस, सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे, और जिसमें हमको डिस्कस करना है मीन, मीडियन एंड मोड, 3 key parameters of our discussion. Yes, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम बात करने जा रहे हैं बच्चों मीन, मीडियन एंड मोड, 3 इंपोर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में। ओके, चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज व्हाट? मीन। ठीक है, एक बार आप रीड अप करो, बिल्कुल केयरफुली आप रीड अप करो बेटा, व्हाट यू आर विजुअलाइजिंग ऑन द स्लाइड्स, व्हाट यू आर एबल टू सी ऑन द स्लाइड्स। Just read it, then we discussed. Yeah, surely. चलिए फटाफट से डिस्कस करो। क्या लिखा है भाई? सबसे पहला पॉइंट क्या कहा बच्चों? इट कैन बी कॉल्ड एज एवरेज एंड अरिथमेटिक मीन। यस, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। क्वेश्चन में आपसे मीन के बारे में पूछा जाए, एवरेज के बारे में पूछा जाए एंड अरिथमेटिक मीन के बारे में, all 3 things will be same. Yes, mean is also called as average as well as arithmetic means. And how we have to calculate it? Yes, it can be calculated as the sum of all the observations divided by the number of observations. Yes, हमने क्या कहा आपसे? मीन को डिसाइड, मीन को लोकेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। मीन को कैलकुलेट करने का सबसे इजी वे क्या है अपना? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज टू द नंबर ऑफ वैल्यूज।
That means another thing I will tell you, mean is defined as x bar. मीन को डिनोट करने का जो नोटेशन है बच्चों, दैट इज x बार. ओके, और इस लैंग्वेज को अगर हम मैथमेटिक्स में लिखना चाहें तो आई कैन राइट समेशन ऑफ xi, जो भी इनपुट्स आपको दिए गए हैं, डिवाइडेड बाई n. यस, where n is the number of all the inputs या all the data given to you, उन सब का करेंगे हम sum divided by number of observation. अब बच्चों मुझे बताओ बचपन में एवरेज कैसे निकालते थे? मुझे बताओ, मान लीजिए मेरे मार्क्स आए 32, है ना, मेरा एक फ्रेंड है उसके मार्क्स आए 25 और मेरा एक और फ्रेंड है उसके मार्क्स आए 42, 52 मान लेते हैं. चलिए ठीक है भाई, एक फ्रेंड का है 32, एक के 25, एक के 52, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड द एवरेज. और एवरेज के लिए बच्चों हम करते क्या है, सम ऑफ ऑल थ्री, 2 + 5 7 + 2 9 एंड 3 + 2 5 + 5 10. एम आई राइट? और डिवाइड किससे करूंगा बच्चों मैं? 3 से. यस और नो? जल्दी से बोलो फटाफट से. 3 से डिवाइड करूंगा ना मैं, ठीक है. एंड व्हेन यू डिवाइडेड, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 एंड 0.33, you will get answer what? Yes, 36.33 is the average of marks of these three students. Am I right? Yes or no? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोल दो भाई, मुझे जल्दी से बोल दो. आई थिंक क्लियर होना चाहिए सभी बच्चों को. ओके, चलो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन 2 मार्क्स का देख लो फटाफट से. लेट्स सी एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन. फाइंड द मीन ऑफ, यस अनग्रुप डेटा है, रेंडमली आपको एक डेटा गिवन कर दिया गया है बच्चों. फाइंड द मीन ऑफ 5 7 11 20 एंड 18. सिंपल सी बात है, आपको डेटा का मीन बताना है बच्चों. डेटा का मीन आप कैसे बताओगे? आपके सामने 5 7 11 20 एंड 18. मैंने आपको बताया x बार विल बी व्हाट? Sum of all observations, yes, divided by what? 5. Clear? Sum of all the observation, that means 5 + 7 + 11 + 20 + 18 divided by 5. Okay, जब आप इन सबको सम करोगे बेटा, you know 5 + 7 will be 12, 12 + 11 23, 23 + 12 23 + 20 will be 43 and 43 + 18 will be 61 divided by 5. So that will be what? 12.2, and 12.2 is the answer for its mean. Okay, simplest question on mean. और उसके बाद थोड़े से बेटर क्वेश्चंस पर हम प्रोसीड करेंगे. चलो जी, बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने. व्हाट क्वेश्चन सेज टू मी, in a match of football, goals scored by a team in 10 matches. बेटा 10 मैचेस हुए फुटबॉल के, एक टीम ने जो गोल्स स्कोर किए वो आपके सामने हैं. दैट वाज 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3. आपको बताना है मीन ऑफ गिवन डेटा. ओके, 30 सेकेंड आई विल गिव टू यू. ट्राई टू योर सेल्फ, देन वी डिस्कस इट. Go for it. Try it. It's a very easy one, beta. The concept which all I convey to you, that's directly you have to apply. Okay. You don't have to worry about it. Simply आपको क्या करना है? You have to sum all the observation and divide it to the total number of observations. ठीक है? आपको सारे ऑब्जर्वेशन का सम करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. Good question of 2 marks in your any exams which you are going to face off.
चलिए, should we start and ask 10 more second modes? 10 more seconds you all have, then we start discussion. ओके चलिए बच्चों, बोला क्या गया है 10 मैचेस में जो हमने गोल्स किए हैं इन टीम्स ने, वो हैं क्या आपके 2 3 4 5। ये डेटा मेरे काम का है, यानी कि ये मेरे क्या है ऑब्जर्वेशंस जो हमने ईच मैच में रिकॉग्नाइज्ड किए हैं। ओके चलिए जी, वी कमिंग ऑन आवर डेफिनेशन। मीन हमसे क्या कहता है कि भाई एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, sum of all observation divide to the number of observation, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई मैच कितनी बार हुआ है 10 बार, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी 10 एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी व्हाट 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 एंड प्लस 3। ओके सिंपल सी बात है बच्चों, लेकिन याद रखना आप कोई मिस्टेक नहीं करनी है। आप ऐसा सोचो कि 0 है इसको काउंट नहीं करेंगे, नो बेटा, दैट वैल्यू इज 0 बट दैट इवेंट विल बी काउंटेड। ओके चलिए, तो सम करना है जो आप सबको आता है वेरी वेल वे। तो व्हेन वी सम दिस डेटा व्हाट वी विल गेट, we will get 2 plus 3 5 plus 4 9 plus 4 14 15 and 3 18 3 21 25 and 3 28 divided by 10 and that will be what 2.8। yes ओके बच्चों, तो ये डेटा क्या आने वाला है अपना, ये डेटा हमारा बच्चों क्या आने वाला है 2.8 आने वाला है डायरेक्टली। okay clear to all, hope so it's very clear to all of you। okay चलिए, find the range of given data, आपको बतानी है बच्चों रेंज गिवन डेटा की। yes what we have। चलिए, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, आपको इस डेटा की रेंज बतानी है एंड अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट वन ऑफ 2 मिनट क्वेश्चन। यस यस रेंज बतानी बच्चों हमको गिवन डेटा की। यस वी हैव टू टेल द रेंज ऑफ द गिवन डेटा। यस हमको बतानी है गिवन डेटा की रेंज आपको। ओके चलिए, तो बेटा सिंपल सी बात मैं आपको जो बोलूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपने करना है क्या बेटा, आपने करना है क्या बेटा, आपको सिंपल सा काम जो करना है वो ये, आप इस डेटा को बेटा पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। देन व्हाट यू विल गेट 5 6, देन यू विल गेट व्हाट 15, then you will get 18, then you will get 20। okay 5 6 15 18 20, okay then 30 35 once again, then you will have what 82, okay then 90 and then 92। आपने क्या किया बेटा इस डेटा को एरे ऑर्डर में अरेंज कर लिया, आइदर यू कैन अरेंज इंक्रीजिंग एंड आइदर यू अरेंज इन डिक्रीजिंग मोड। ओके 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 चलिए नाउ हमें निकालनी है बच्चों रेंज और रेंज क्या होती है भाई, रेंज क्या होती है,
ओके, रेंज क्या होती है बच्चों? अपर लिमिट हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया, देन यू कैन इजीली आंसर 92 minus 5 will be what? 87 is the answer for this question. Am I right? Go for next. That will be little bit good question. Yeah, go for it. Okay. चलिए चलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों, और ये अच्छा क्वेश्चन है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार आते रहे हैं। यस, कई बार आ चुके हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, बिल्कुल आए हैं। ठीक है, चलो जी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, बिल्कुल थोड़ा सा। देख लेते हैं कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं माइंड। यस, ठीक है, लेट्स सी एंड वेट। ओके, चलिए, लास्ट 20 सेकेंड मोर आई गिव यू, देन आई स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, चलिए, आपको गिवन है द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस इज x plus 4, x plus 8, x plus 12, x plus 6 is 15। आपके सामने 5 ऑब्जर्वेशंस जिनका मीन बच्चों आपको दिया गया है 15। यू हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन डेटा। आपको गिवन डेटा से बच्चों x की वैल्यू बतानी है। ओके ओके ओके, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। चलिए चलिए, तो फिर से बच्चों वही डेफिनेशन हमारी रहेगी, x बार इज व्हाट? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन समेशन ऑफ xi डिवाइडेड ओवर n। ठीक है, x बार इस बार हमको पता है दैट वैल्यू विल बी 15। वैल्यू क्या है बच्चों? 15। एंड समेशन ऑफ xi, we have to sum all the observations that are what? x plus x plus 4, x plus 8, x plus 12 and x plus 16। ओके, इन सब का हमने क्या किया बेटा? सम किया एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? यू ऑल नो, डिवाइडेड बाय 5। so when we multiplied it, 15 5 just 75, as you all can see properly. And now guys, x plus x plus x plus x plus x will be what? 5x. And 4 plus 8, 12, 12, 12, 24 and 16 will be what? 40. ठीक है, and now take out 40 here. You can do what? 75 minus 40 will be going what? 5x. 75 minus 40 will be 5x, and 5x will be going what? 35। 5x की वैल्यू बच्चों क्या होने वाली है आपकी? 35, और x की वैल्यू फाइनली आपको मिलने वाली है क्या? 35 over 5 will be what? 7। So that C part will be the right option for this question. Hope so nobody will have any doubt in this. Nobody will have. Am I right? Okay, okay. चलिए, now talking to you about important things. Yes, first you have to see it
all the information, then sure I will convey it to you. Yeah, surely I'll convey it to you. Sure. Okay, as you all know, we all have daily special classes. Yes, daily बच्चों हम मिलते हैं YouTube as well as special classes में. Yes. तो what we are planned for this week? This weekend पूरे weekend की planning आपके सामने रख देता हूँ एक बार. Yes, 27 यानी कि tomorrow we are going to meet with what? Rapid fire quiz on coordinate geometry. Yes. हम करने वाले हैं बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर एक रैपिड फायर क्विज. रैपिड फायर, डू यू नो? यस, ऑल द इंपोर्टेंट एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. नेक्स्ट इज व्हाट? 28 को बच्चों हम वापस मिलेंगे. वन शॉट रिवीजन, बिल्कुल एक क्लास में सारे के सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे हम लाइंस एंड एंगल्स के. फ्रॉम बेसिक, इट्स एन 2 आवर क्लास, तो हम बेसिक से लेकर सारे हाई लेवल कंसेप्ट डिलीवर करेंगे इस क्लास में आपसे. Then again on 29, because 28 को हम सारे कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में. 29 को हम क्या करेंगे बच्चों? 29 को हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस. We are going to do a question practice session on lines and angles. Okay, and on the 30th of August, most awaiting session to all of you. जिस सेशन का आप कर रहे हो काफी टाइम से इंतजार. यस, 30 अगस्त को मॉर्निंग में 9 AM पर मुलाकात होगी बच्चों आपसे. किसके साथ? मेगा पोल सेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री के साथ मुलाकात होगी हमारी आपसे. यस, दैट इज द शेड्यूल फॉर नेक्स्ट 4 days. यस, यू कैन नोट इट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इट. या ओके, एंड दैट्स लॉट. थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू. यस यस, करना क्या है बच्चों? आपको चैनल लेट्स क्रैक 9th and 10th CBSE को करना है सब्सक्राइब. बिल्कुल बेटा, so that you will get all the updates about next classes. Okay, and main thing is what? That is my code SPAG 10. बच्चों SPAG 10 SPAG 10 is your search code. आपके सर का है कोड SPAG 10. ठीक है, SPAG 10 है आपके सर का कोड. जैसे ही आप करते हो इसको अप्लाई, As you apply that code, आपको मिल जाएगा बच्चों अनअकैडमी से 10% डिस्काउंट सीधा सीधा. And lot of additional things बच्चों. lot of educators are here to join a very long time. They will regularly mentor you approx 2 to 3 years completely regularly. Okay, so go for once again. If I want to recall you the subscription pitch, बिल्कुल एक बार बात कर लेते हैं हम दोबारा से सब्सक्रिप्शंस के बारे में. What are the options you will have to start your study with Unacademy? You have lot of many more options बच्चों. काफी सारे options available हैं आपके पास. 1 month, 6 month, 12 month, 24, 36 and 48. Yes, lot of things you will have. Okay, yeah. So what you can do बच्चों, those who are sincere, go for at least 12 months and 24 months. Many of you say sir that plan rates was high, so I will clear you one thing बच्चा पार्टी. टोटल पैकेज है आपका 15,000 का. 10% आपको मिलेगा ऑफ, then it will be 13,500 rupees for an year of all subjects. Per month costing will be what? 1125. बच्चों पर मंथ आपने क्या पे करना है? 1125 रुपए एक मंथ का पे करना है आपको ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. एंड यू ऑल नो व्हेन यू गो फॉर एनी ट्यूशन क्लासेज, दिस अमाउंट यू विल पे ओनली फॉर व्हाट? ओनली फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट एंड मोर देन फ्रॉम इट आल्सो. Okay, so in that 1125 you will get all your subjects. Okay, yeah, so that's very good. Plan it and start your study with Unacademy in a proper way. Okay guys, yeah, thank you once again. Surely we will meet in the next class with a detailed discussion of concepts, quizzes and many more things about statistics. Okay, thank you all of you. Goodbye.